স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই চুম। পেপাৰ লিক কৰা সকল সাৱধান, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা সংসদত গৃহীত হ'ল এই বিধেয়ক। এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব। এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে পেপাৰ লিক কৰা সকল এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব। সংসদত গৃহীত হ'ল এই ঐতিহাসিক বিলখন। সংসদত গৃহীত কৰা হৈছে। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, নিকা আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবেই সংসদত পাছ কৰা হৈছে নতুন বিল। আৰু ফেচবুকত লাইভ যোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। জনাই আছো আমি এই মুহূৰ্তৰ সেই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পেপাৰ লিক কৰা সকল সাৱধান হ'ব। এতিয়াৰ পৰা সংসদত গৃহীত হৈছে এই ঐতিহাসিক বিলখন। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰৰ এই ডাঙৰ পদক্ষেপ আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, নিকা আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে সংসদত পাছ হ'ল এই নতুন বিলখন। জনাই আছো আমি মুহূৰ্তৰ সেই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু ফেচবুক লাইভ যোগে এই ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যিহেতুকে এতিয়া পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ বাবে সংসদত গৃহীত হৈছে ঐতিহাসিক বিলখন। আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, নিকা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক পুনৰবাৰ কৈছো, আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, নিকা আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে সংসদত পাছ কৰা হ'ল এই নতুন বিলখন। ফেচবুক লাইভ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতুকে এতিয়া কোনো ধৰণৰ পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিয়নো বিগত দিনত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পেপাৰ লিক হোৱাক লৈ, গতিকে এনে পৰিস্থিতি যাতে আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে এতিয়া এই সংসদত গৃহীত হৈছে ঐতিহাসিক বিল। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছে পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়কখন। আৰু আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ, নিকা আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে সংসদত পাছ কৰা হৈছে এই নতুন বিলখন। ফেচবুক লাইভ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। জনাই আছো আমি এই মুহূৰ্তৰ সেই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিগত দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিদৰে পেপাৰ লিক হোৱাক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। তাৰ বাবে এতিয়া এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ফেচবুক যোগে লাইভ আহে আৰু ফেচবুক যোগে লাইভ আহি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পেপাৰ লিক কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া পেপাৰ লিক কৰিলে বিপদত পৰিব, কিয়নো সংসদত গৃহীত হৈছে এই বিলখন। গতিকে পেপাৰ লিক কৰাসকল সাৱধান হৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত হৈ থাকে। তাৰ বাবে এতিয়া এই বৃহৎ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। জনাই আছো আমি মুহূৰ্তৰ সেই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো সংসদত এতিয়া গৃহীত হৈছে এই বিধেয়কখন, যাৰ বাবে এতিয়া পেপাৰ লিক কৰাসকল সাৱধান হৈ থাকিব। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছে পৰীক্ষা সংশোধনী বিধেয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত মোদী চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমাৰ দেশৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক স্বচ্ছ আৰু নিকা আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে সংসদত পাছ কৰা হৈছে এই নতুন বিলখন। ফেচবুক লাইভ যোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, আগবঢ়াইছো। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से
हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है।
इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था,